राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणेश अबोधिता की है सूरत, गणेश अबोधिता की है सूरत, ईसा क्षमा की मूरत। एक बालक एक राजा, दोनों ने अहंकार को त्यागा। अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो। एक जागृति दिलाए, एक पार कराए, एक जागृति दिलाए, एक पार कराए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा, स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा, निर्मल हमको बनाए। एक शासक एक तारक, दोनों ही निर्मला माँ के बालक। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए, एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति ने अवतार लिया एक, गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। सागम पद पधम परे मग घर सनि करी, गम गम पम पद पद सनि सरे। गणपति ने अवतार लिया,
ईसा में खुद को समाया। स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, पुनरुत्थान दिलाया। एक आदि एक अंती, दोनों में ओम की शक्ति। अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी, एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईसा, दो to celebrate the birth of Christ. He was born in a manger. All these things are already pre-planned. That he should be born in a manger, in difficult situations, to show that whether you are born poor or rich, whether you are born in difficulties or in problems, if you have divinity within you, it shines by itself. As the Christianity took a very wrong, deviated line, they have never been able to understand the significance of Christ. To them, Immaculate Conception is absolutely not possible. Most of the people think that it's some sort of a mythical story. But in India, we do believe that Gauri created Sri Ganesha out of her own vibrations, and that he became the deity of Muladhara. We accept it, but not in the West. They will never accept such a thing because their mental side is overdeveloped and dominates them. Maybe they are not so very old like the Indians to understand that above all is God. Even the concept of God is quite mental. Moreover, the way Christianity has been, it has not provided any proper guidance. On the contrary, wherever they have failed, they said it's a mystery. But it's very simple to understand for Indians that anything is possible for God. After all, He's God. He's God Almighty. Because of this mental attitude, which is much lower than the knowledge of your spirit, the ordinary mundane type of the superficial knowledge can never allow the personality
to accept the greatness of God. I had a grandma, she was my father's aunt, and she used to tell us a nice story about somebody who was going to meet God. Of course, this in India, everybody understands all these things. They will not say how is he going to meet God, but accept. All right, he's going to meet God. So, when he was going on the way on the road, he found one gentleman sitting there, nicely singing songs, bhajans of God, doing nothing on the roadside. So, he said, oh, so you are going to meet God? Yes, I'm going to meet him. So, have you any message for him? Yes. Please tell him that I'm all right, but he should arrange for my food because I think the food is now finishing. He said, really? That's what you want me to tell him? Yes, yes, please tell him. Oh, of course, he'll arrange, but please tell him. So he went ahead and he met another gentleman who was standing on his head, or in a Christian way, I would say he was going to church every day with nice suits and singing hymns every day, listening to the pastor's sermons or whatever you may say. And in Indian way, we can say he was going to the temple every day, standing on his head, doing all kinds of yogasanas and everything. And he asked him, please go and ask God. I've tried everything. When is he going to meet me? I would like to see him. I would like to have his darshan. He said, all right. So he went to God. And whatever work he had, he finished with it. And then God asked me, have you got anything to tell me? I said, nothing much, but I met one gentleman while coming, and he said that I'm doing all kinds of things, I have tried everything, and when will God meet me? I'm standing on my head, and I'm doing also all kinds of yogasanas and all kinds of things, and also I'm going to church and mosque, I'm praying, doing all sorts of prayers, but when will God meet me? So God said, tell him he has to do a little more. See, it's not easy. When Sahajoga will come, we'll see. So then he said, and there's another one who was on the road. He was just enjoying himself, singing songs. He suddenly saw me and he told me, you see, my food is now finishing. Ask God to arrange it for me. He said, really? The food is finishing. Immediately God said, what are you doing? Why don't you go and look after him? His food is finishing. No, no, sir, yesterday only we arranged it, all that. He said, all right, doesn't matter. So to understand, that this fellow who's trying all these things and God is still saying that he has to wait. And while this fellow is just singing songs of God and all that, and why is it so much impressed by this another fellow who is doing nothing to seek God? So then God realized that he is in some sort of an illusion. So he told him, all right, you go and tell them one thing, both of them the same thing. That when I went to God, what I saw there was that he made a camel pass through the eye of an eagle. So he said, really I should tell them? Yes, yes, you just tell them and see the reaction. So he went down. So the first one met him. He said, what God has said? He said that God has said, wait till Sahajoga comes in, then I'll meet you. Before that you go around like this. Oh God, when will this Sahajoga come? And he said, so, but he'll meet me sometime. Oh, I hope Sahajoga also comes sometime. And he was quite disappointed. So he went and we asked him that, what did you see with there when you went to see God? He said, I saw that, he passed a camel through the eye of an eagle. He said, what? How is it possible? It's impossible. Now mentally, how is it possible that a camel has passed through the eye? It's not possible to see the volume of this one.
and such a little thing. How can you pass? No. You are just telling me a story because you've been to God, you're trying to show off, that's all. I don't believe in all this nonsense. You're just telling me lies and don't try to befool me. So he went to another person who was on the street eating nicely. He said, how are you? I know he had arranged before you reached there. I know it was all right after all. He looks after me all the time. So what did you see when you went there? He said, I saw that God Almighty passed a camel through an eye of a needle. It's a very amazing thing. He said, what? Amazing? He's God. Do you know He's God? Do you know He's God? God can do anything. He can do anything. That's made him understand. That if you understand that God is all powerful, it doesn't mean that He can move Himalayas to Maharashtra. It doesn't mean that. But it means He's all powerful. Means He can do subtlest thing, and such things which our brain, this mental side, cannot understand. It's beyond the concept of a human mind. This is what God is. He is the one who has created human beings. He has to be beyond us if He is creating. If a potter creates a pot, that means he is beyond the pot. Pot cannot create God, the potter. And the potter has created the pot. So that means that this pot, which is created by Him, has to be something which is made by Him. So He has to be much more powerful than the pot is. But it is unbelievable, or say beyond the conception of human beings, that what a God it must be who has made this great computer. We take everything for granted. We cannot even make a particle of clay ourselves. We cannot make anything, human beings cannot make. If there is some stone, all right, you can put this up. If there's some clay, you can make some sort of a house out of it. But it's all dead from the dead. But can you make a candle which will burn badhas? You have seen it with your own eyes. That before my photograph, the badhas burn. Can you do that? Now we have now also the idea of the complete, intricate, working, delicate machinery, and also very dynamic, explosive machinery. How it works to create human beings, to create all this universe, to create all these beautiful flowers and trees and everything. Look at the stars, look at how many there are. Out of that He has chosen this Mother Earth to create human beings. How He has made it? Well, He wants to send His own Son. He can send it the way He wants to send it. Even to challenge this shows the mental mind which is absolutely in mud. So to accept it is only possible when you have saints, real saints, who tell you that this is how Sri Ganesha was born out of God.
But to jump into it, into faith, when you come to Sahaja Yoga, you start seeing miracles taking place. Then you can understand that these miracles are taking place. And if there is another miracle that has to take place, it will take place in any case. We are not doing anything. It's all done. And we don't doubt it. Once you doubt, you become again the same human being which is just embedded in the mud. I always say that you are like lotuses now opened up. You're not flying in the air. Your roots are down there. But you are now lotuses. And that's what is on top of the lotus, this Mahalakshmi principle is born. Mahalakshmi principle is the one which came on this earth at Sitaji as Radha and also as Mary, as Mother Mary. It's said that Mahalakshmi is born out of the sea. What is the meaning of Mary? Maria means, you know, Mari means the sea. She was born out of the sea. So she being a Mahalakshmi herself, she could create a child. What's the harm? She could do anything. And this is the thing, they have to rise above. Christians have to rise above this Christianity and has to understand that it's such a great thing that was Christ who came on this earth, who was the incarnation of the principle of Ganesha. Ganesha becoming Mahavishnu is a very big thing which one should try to understand. Ganesha is the son of Shiva. Sri Ganesha is the one who was first created before creating anything, any atmosphere, anything. Because he is the Omkara. And the Omkara is the first breaking of Adi Shakti from Shiva. That sound, Tankar as they call it. From there started Omkara, and he is the one who is the embodiment of that Omkara. So this sound is Sri Ganesh, is his power, was created first, foremost thing, just to create holiness, pavitrata. When this holiness was created, this pavitrata was created, then everything was created in the sea of that holiness. And then he incarnated as Christ, but as Mahavishnu, not as Shiva's son, but as Mahavishnu. And who is Vishnu is an uncle of Sri Ganesh. His mother's brother is Sri Vishnu. So it was brought up, we should say, by Mahavishnu, you can say. But Mahalakshmi adopted the principle of Sri Ganesh. In the Kundalini chart, you can see that the Sri Ganesha is connected on the left hand side to the Ida Nadi. And the Kundalini is above that. So now what has happened is this, that he transcended that part. And if he had to come for the redemption, he had to come as the son of Mahalakshmi. So it was Mahalakshmi who adopted him, or we should say, really conceived him within himself as Christ.
and he became Mahavishnu. Anything is possible in the family of gods and goddesses because they are gods. It is beyond human mind to understand how these things are working out in that realm. Very difficult. But now you have got realization, you can feel the cool breeze. So many new things are happening to you. So now believe me that there is no unholy alliances among the gods and goddesses. No unholy alliance. There's nothing that is human in them. They are all divine, pure. Once you understand this point, then you'll understand why Sri Ganesha had to accept to be a son of Mahalakshmi, was born to him as Christ. Because he had to come on Agya, and for the redemption, as Ganesha, he doesn't do the redemption part because at that stage he is for the innocence, for the holiness, for the wisdom, or also for destroying negativity. But he had to come up. Only Ganesha could be brought to this very constricted chakra, Agya chakra. Now, why is it constricted? It's quite a scientific thing, which I would not like to discuss today. But it had to be constricted. And it goes on getting more constricted, this Agya chakra. The more we think, the more we go into the left or right, it goes on really becoming like this, absolutely like this. So in this very subtle area, only Christ could be subtle because he is the subtlest of subtle. Is even subtler than an atom because in the atom those vibrations which move, isometric and symmetric movements, are subtler than the atom. And this is the subtler of that also. So in that little, very constricted area, only a personality like Christ, which is nothing but purity. There is no other element in him but purity. All other incarnations have all the five elements in it. He has nothing. He is nothing but pure vibrations. That's why he could walk on the water. Because there was no mass in his body, no matter in his body. No matter. No element except for Chaitanya itself. Omkar becoming Ganesha in the mud, or the what we can say, the thing that came out of her body, only the Chaitanya. So at Ganesha stage we can say that the Chaitanya was kept in that form, but in the state of Christ it was not. But the whole drama was played later on of his death and resurrection. Because he is the one who is responsible for our resurrection, because he is the gate. He is the path because he is Sri Ganesh. Omkara is the path and he is the gate, but he is not the destination. His mother is the destination.
Even Mahalakshmi is not the destination. Even Mahakali, Mahasaraswati is the Adishakti is the destination where you have to reach. All these things were never told in the Bible because he could have hardly lived for 4 years with public life. Nor did they want to tell about it because they did not know. Also, there was a definite suppression of all divine things, for these people are all commercialized institutions. As we have also in India, all kinds of commercial institutions. But the only advantage in India is that religion is not organized. Thank God for that. But they organized it, they organized Christ, they organized all his principles, everything, and now they think he was a good human being. What a certificate to give. So today we are here to celebrate the birth of Omkara. It's very beautiful. I don't know if you can realize it, what it is. It moves into everything, whether it is Anu, Paramanu, is atom, molecules, into all the organizing of chemicals and also the periodic laws and also in the gravity, into everything that moves is this Omkara. And your vibrations are nothing but Omkaras. Actually, in my photograph, the vibrations have come as Omkaras. On the head of the people, there's Omkara. How is it happening? These lights look like Omkar. How is it on top of the heads of the Sajogis? There's all the Sajogis' heads, there's Omkar or Allah in Arabic language. My name also in Arabic. Who is doing this? It is he who is doing all this. So Omkara itself takes a form to do things, to convince you of Adishakti. He is the one who is handling all these powers. He doesn't enter into the photograph, he does not. But he plays a trick. After all, you see, if you go into details, how do you get a photograph through the light? The light passes straight, a straight line. But if he wants, he can make the light pass another way now. He can transform the light into something else. He can do whatever he likes. And that's what he does to convince you. And he said that anything against me I'll tolerate, but nothing against the Holy Ghost. And this Holy Ghost is the Adishakti. Without him, you cannot go to the Sahasrara. So in the whole play, he's like the Sutradhara. He's the one who is the conductor, the one who moves the strings in a puppet show. And so it is very important to pray to Sri Ganesha. Every time we have puja, we have to pray to him, and that's how we are praying to Lord Jesus Christ. Every time. Without his auspiciousness, without his help, we cannot do such a. He is the manager. See, I am sitting here and he is the manager. Supposing there is no management, how will I speak here? Nothing can happen. But he is so efficient and you never see him working out everything, doing everything. आप लोग सब कुछ मेरी बात इंग्लिश में नहीं समझ पाए होंगे और ईसा मसीह का जन्म है. ईसा मसीह जो है कितनी बड़ी चीज है वो मैं आज समझा रही थी. हम लोग गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि सबने बताया कि स्तुति.
पर ये है क्या? गणेश जी क्या चीज है? हम कहते हैं कि वो ओंकार है। ओंकार क्या है? सारे संसार का जो कार्य है वो इस ओंकार की शक्ति से होता है, जिसे हम लोग चैतन्य कहते हैं, जिसे ब्रह्म चैतन्य कहते हैं। ब्रह्म चैतन्य का जो साकार स्वरूप है वो ओंकार है, और उसका जो मूर्त स्वरूप है या विग्रह उसका जो है वो श्री गणेश, और उसका जो अवतरण है वो है ईसा मसीह। इस चीज को अगर आप समझ लें तो जब हम लोग गणेश की स्तुति करते हैं तो बस पागल जैसे गाना शुरू करते हैं। एक एक शब्द में हम क्या कह रहे हैं उनके लिए, हम उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? जिनके पास शक्तियां हैं, समझ लीजिए अगर मेरे पास कोई शक्ति है, आपके पास शक्ति है, तो उसका वर्णन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो शक्तियां हमारे अंदर आ जाए, उन शक्तियों से हम भी शक्तिशाली हो जाएं, इसलिए हम गणेश जी की स्तुति करते हैं। पर सबसे बड़ी तो उनकी शक्ति पवित्रता की। जो चीज पवित्र होती है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, उसको कोई नहीं छू सकता। जैसे साबुन है, साबुन आप कितना भी धोइए, किसी से भी धोइए, वो गंदा नहीं होता। एक बार साबुन भी गंदा हो सकता है, पर ये ओंकार पवित्र, शुद्ध और अनंत की वस्तु है, या अनंत का कार्य करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की जब आप उपासना करते हैं तब याद रखना चाहिए कि हम इस शक्ति को अपने अंदर लेना चाहते हैं, जिससे हमारे अंदर पूरी शुद्धता हो जाए, हमारे चक्र सारे शुद्ध हो जाए, हमारे जीवन शुद्ध हो जाए, हमारे समाज, राजकारण, हमारा देश और सारे जगत की शुद्धता हो जाए। और उस शुद्धता में ही आनंद है। जब कोई शुद्ध चीज हो जाती, जैसे आप नहा धो करके और साफ कपड़े पहन ले तो बड़ा अच्छा लगता है। पर जब पूरा ही आपका जीवन इस ओंकार से स्वच्छ हो जाता है, तब जिसे हम आत्मानंद कहते हैं वो होता, वो मिलता। और आत्मा में भी जो शक्ति है वो भी ओंकार ही की शक्ति है। लेकिन ओंकार हमको समझते नहीं क्या चीज है। ये कह दिया कि वो है और अर्धमात्रा है, ये कहने से हम समझ नहीं पाते कि ये चीज क्या है। और ये चार शक्तियां चतवारी श्री गणेश की है, उन्हीं का प्रादुर्भाव आप पाते हैं ईसा मसीह के जीवन में। लेकिन वो 4 साल तक ही जीवित रहे, और पता नहीं कैसे कि उनके बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम जानकारी रही, पर पाश्चिमात्य देशों में उनको लोग मानने लगे। अब ये तो सिर्फ खोपड़ी मात्र है, इनको और कुछ है नहीं, न हृदय है न कुछ है, सिर्फ खोपड़ी है। और उस खोपड़ी में इतनी सूक्ष्म चीज कैसे घुसेगी? इस सूक्ष्म चीज को समझने के लिए मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें मेधा जागृत होनी चाहिए, माने उसके अंदर वो संवेदन शक्ति आनी चाहिए जिसमें वो प्रकाश के पुंज से भर जाए, प्रकाश के पुंज से भर जाए। उस प्रकाश में नॉर्मली आप देखिए कि अगर ये प्रकाश आंख पे आ रहा है तो आंख धुंधा जाती है, लेकिन ये अंदर का जो प्रकाश है उससे आंख धुंधलाती नहीं, पर सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उस आत्मा के प्रकाश को पाने के लिए आज्ञा चक्र पे आप देखिए, बराबर आज्ञा चक्र मेधा के ऊपर में, ये मेधा है, इसको कि ब्रेन प्लेट कहते हैं, इस पे यहाँ आज्ञा चक्र है। जब मेधा खुलती है, मतलब मेधा ऐसी है बंद, जब खुल जाएगी तभी आज्ञा चक्र खुलना कहते हैं। और जब इसके अंदर से कुंडलिनी ऊपर आती है और जब वो मेधा के ऊपरी हिस्से में छा जाती है तो मनुष्य की बुद्धि में एक विलक्षण
जो कि मनुष्यता से परे, मनुष्य की बुद्धि से परे एक विलक्षण दैवी शक्ति प्लावित होती है। और इस दैवी शक्ति से आप समझने लग जाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। उसी की शक्ति से आपके हाथ पर भी आता है। धीरे धीरे आपको कोई भी बात हाथ पर जाने की जरूरत है, ऐसे आप जान जाएंगे। आप फौरन समझ जाएंगे ये झूठा है, ये अच्छा है। पर कुछ लोग बहुत जल्दी इस चीज में उतर आते हैं। मैं कहती हूँ उन पे ईसा मसीह का आशीर्वाद हो गया। और कुछ लोग अब भी बुद्धि के चक्कर में रहते हैं, जैसे यह है कि बेकार के धर्म अधर्म में फंसना, जाति पाति में फंसना, और हमको तो भाई हिंदुस्तानी ठीक है या अंग्रेजी ठीक है, इस तरह के विचार, संकुचितता और दूसरी अनुदारिता और कंजूसियां और दुनिया भर की जो चीजें हैं। अपने देश में तो पता नहीं, जैसे बहुत सारे पैरासाइट्स, मच्छर, खटमल सब मिलते हैं, वैसे कहीं नहीं मिलते। ऐसे यहाँ जो जो चीजें मिलती हैं वहाँ ऐसी कहीं नहीं मिलती। मनुष्य कहाँ तक कितना गड्ढे में जा सकता है वो इसी देश में देखने को मिलता है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि जिस देश में इतने बड़े अवतरण हो गया, जिसकी संस्कृति इतनी भक्ति से भरी, परमात्मा को मानती है, वहाँ ये मैला कुचेलापन, इस तरह से रूढ़िगत बन के इस तरह से हम लोग अपने को सड़ा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं। वो सहयोग में आने पर तो कम से कम छूटना चाहिए, पर अब भी जाति पाति ये वो दुनिया भर की चीज अब भी हम लोगों को कीड़े मकोड़े बनाए जा रहे हैं। तो विश्व निर्मल धर्म जो है, ये धर्म ओंकार का धर्म है, पवित्रता का धर्म है। इसमें ये सारी चीजें आप अगर चला रहे हैं तो आप इस धर्म में नहीं उतर सकते। और बाह्यता आप कितना भी कहें कि हाँ भाई हम तो माता जी की पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं और हम उनको मानते हैं, तो उससे कुछ आपको फायदा नहीं हो सकता है और न दुनिया को फायदा हो सकता है आपसे। ये तो ऐसा ही है कि कोई दिया कहे कि हाँ साहब मेरे में तो प्रकाश है और मैं सबको प्रकाश दे रहा हूँ, तो कहेंगे जनाब कहाँ है आपका प्रकाश, दिखाइए। तो अपने को हम ठगी कर रहे हैं। तो सहयोग में जो लोग आए उनको पहले पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए कि नहीं, अब हम अपने को ठगने वाले नहीं, इस चीज को हम पूरी तरह से छोड़ करके सहयोग में पूरी तरह से उतरने वाले, तभी आपको इसका फायदा हो। अब हमने देखा जो आधे अधूरे लोग होते हैं उनको क्या होता है, हो सकता है कि कभी कभी किसी गुरुओं के पास जाने से भी कभी कभी आपको तकलीफ हो जाए, या किसी गलत लोगों के संगति में जाने से भी आपको तकलीफ हो जाए। क्योंकि आज जो हमारा जमाना आ गया है, इस जमाने को हम कृत युग कहते हैं, कि जहां पर कि ये ब्रह्म चैतन्य कार्यान्वित हो गया, ये कार्य कर। अब आप न तो खुद को ठग सकते हैं और नहीं अब मुझको ठग सकते। जिसने ठगी का रास्ता लिया उसको उसका फल मिल गया। एक साहब आके कहने लगे कि माँ मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा इतना मुंह बड़ा होता जा। मैंने कहा अच्छा कैसे होता है? कहने हनुमान जी के जैसे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा तुम हनुमान हो रहे। नहीं माँ कुछ तो मुझे घबराहट हो रही, मेरा मुंह फट जाए। आप तंबाकू खाते हैं ना? ये बात तो है। मैंने फिर तंबाकू ही खाओ, काय को ध्यान करते? तंबाकू भी खाएंगे और ध्यान भी करेंगे तो मुंह तो ऐसे बढ़े हुए। दूसरे कोई साहब आए, पहले माँ देखिए मेरी ये उंगली कट गई। अच्छा तो सिगरेट पी रहे थे? कहना हाँ, तो मेरी इस उंगली में चोट आ गई। एक साहब उनके मोटर का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने आके बताया कि वहां सिर्फ यही उंगली गई मेरी, इसी में चोट आई क्योंकि मैं सिगरेट पीता। आप सहयोग में आए तो आप सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और भी आपको छंद है दुनिया भर के, और हम सहयोगी कर कितना बड़ा बैच लगा घूम रहे हैं। तो जो वो बैज लगाया वो बैज ही आके आपकी खोपड़ी तोड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। आप लोग अगर सोचे कि बैज लगाना इतनी सरल चीज ऐसी नहीं है। जिस बैज को आप लगाए ना वही आपकी खोपड़ी तोड़ेगा। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं तोड़ती, समझे ना? तो ये बैज कोई कम चीज नहीं है, एक विग्रह है, इसका एक कोएफिशिएंट है। मतलब ये कि इसमें से
चैतन्य बहता है। वही चैतन्य गोल घुमाकर आपका अगर गला घोटे तो आप कहेंगे माँ मैं तो बैच लगाए सो रहा था, फिर ऐसे कैसे हो गया, मुझे क्यों? वो जो बैच था ना वही निकल के आया, खोपड़ी आपकी तोड़ दी। तो इसलिए बैच मत लगाओ, और लगाना है तो उसके योग्य रखो। आजकल सबको ये कि वहां हमें बैच दो, गले में वो ये है, हम गले में पहनेंगे वो लॉकेट। भैया पहनो और संभल, समझे ना? मुझ पे उसका दोष मत लगाना कि माँ मैं ये पहन के गया था तो भी फिसल पड़ा और पैर टूट गया, तो उसी ने फिसला तुमको। इसको पहनो मत। और पहनना है तो अपनी उतनी पात्रता होनी चाहिए, अपनी योग्यता होनी चाहिए। अगर वो योग्यता आप में नहीं है तो ये ईसा मसीह से भगवान बचाए रखे। और गणेश जी तो उससे भी बढ़ के हैं, वो तो लेफ्ट हैंड ही में परस लिया, एक ऐसा मार देंगे तो मैं क्या करूं उसको। और साहब उनकी तो वो कोई मेरी सुनते, अब तुमने जब पहन ही लिया तो वो कहते लो पहनो। और तो इस बैच को पहनना या इस पेंडेंट को पहनना, अंगूठी को पहनना, बाबा रे बाबा बहुत संभाल के रहे। आप बाथरूम जाते हैं उसको अलग उतार के रखो, इसको बहुत संभालो। मेरे बालों का भी मैंने बताया लोगों से कि इसको भाई मेहरबानी करो, ये बाल जो है ये यम के दिए हुए बाल है, अब वो इसके पीछे रहता है, तो आप मेहरबानी करके ये बाल वाल जो है इनको कहीं मिल जाए तो मुझको वापस कर देना। इसको मैं नहीं चाहती कि तुमको कोई तकलीफ हो, मैं माँ भी तो हूँ, पर ये लोग तो नहीं ना तुम्हारे बाप माँ, ये लोग तो तुम्हारे भाई लोग हैं और डंडा लिए घूमते हैं आपके पीछे में। इसलिए समझ लीजिए कि सहयोग में आप आए हैं वो बड़ा आराम है, आनंद है, भजन हो रहा, और फिर डंडा कहां से पड़ा? तो इसलिए सहयोग की विशेषता ये समझ लेना चाहिए, ये परमात्मा का ज्ञान है। और परमात्मा जो है वो माँ नहीं, माँ तो प्रेममयी है, वो तो जानती कि भाई बच्चे ही हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, चलो कोई हर्ज नहीं। लेकिन परमात्मा देख रहे हैं कैसे चल रहे हो, और इतनी मेहनत करके हमने आपको सहयोग दिया आपकी माँ ने, तो आपका पांव कहाँ डगमगा रहा है, आप कौन सा गलत काम कर रहे हैं? और इसलिए समझ ये कहूंगी कि आदिशक्ति जरूर परमात्मा की शक्ति है, उनकी इच्छा है, लेकिन परमात्मा जो है वो देख रहे हैं कि ये सारी जो मेहनत हो रही है, इतना जो नाटक इन्होंने बना रखा है, इसमें सत्य असत्य कितने लोग हैं और इनका किस किस का ठिकाना करना है, उसी का हिसाब जोड़ रहे हैं। जो अच्छे हैं उनको भी कभी देखना चाहिए ना, वैसा नहीं, जो झूठे हैं उनको पकड़े बैठे और सबको डंडा मारेंगे। इसलिए मेहरबानी से जो भी करना है शुद्ध मन से, दिल को खोल के, जो हमने आपसे बातें बताई हैं कि अंधश्रद्धा हो अंदर में आपके अंदर कोई जातिवाद हो, या कोई हम हिंदुस्तानी बहुत ऊंचे ऐसी भावना हो, या किसी तरह की भी ऐसी जो भावनाएं जो कि झूठी है, इसमें पावित्र नहीं है, ये सारी भावनाएं निकाल करके आप कृपया मेरा पेंडेंट पहने, क्योंकि उस पेंडेंट के साथ एक एक गण लग गया, अब वो लगे हुए हैं आपके आगे पीछे। जितनी आपकी रक्षा करते हैं उतनी आपकी रक्षा एक तरह से करते ही है कि आप गलत काम न करें, क्योंकि वो आपको अंदर बाहर सब जानते हैं। इसलिए आज के दिन ये भी एक आपके लिए चेतावनी से है, और ऐसे भी एक बड़ा आनंद भी है कि अगर इस संसार में ईसा मसीह न आते और वो अपने को आज्ञा चक्र में बिठा करके और तारण का मार्ग न बनाते, रिजरेक्शन का मार्ग न बनाते, तो सहयोग साध्य नहीं, उनका आना अत्यावश्यक था। लेकिन इन सब में आपस में झगड़ा नहीं, ये सारा एक बना हुआ एक
पूरे पेड़ पर, जीवंत पेड़ पर इन सब लोगों की उत्पत्ति हुई कि इस पेड़ को पनपाया जाए। अंत में जाके सहस्त्रार पर आना हुआ और उस सहस्त्रार पे कार्य हुआ। पर अगर पेड़ ही नहीं हो तो सहस्त्रार कहां से आए? और सहस्त्रार अगर आया है तो इस पेड़ ने ही बनाया है उस सहस्त्रार को, तो उस पेड़ की भी जिम्मेदारी है कि सहस्त्रार को देखे, संभाले और इसकी पूरी रक्षा करे, और इसके विरोध में जो लोग जाते हैं उनको ठिकाने लगा। तो आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से एक मानने का है कि अगर ईसा मसीह नहीं आते तो हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं होता, क्योंकि कहते हैं श्री गणेश से, जब हमारा मोक्ष का टाइम आएगा तब तुम हमारा रक्षण करना। ऐसा कहा कि हमारे मोक्ष के टाइम में तुम हमारा रक्षण करना। मोक्ष के टाइम में वो स्वयं साक्षात आज्ञा चक्र पे पधारते हैं और आपका रक्षण करते हैं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है, और इसी तरह से चेतावनी भी देता है, संभल के रहिए। और अगर आज्ञा चक्र पे आप बिछड़ गए तो पागल खाने में चले जाएंगे, और या तो कोई और बीमारी हो जाए। तो आज्ञा चक्र की पवित्रता रखनी चाहिए, माने हमारे विचार हमेशा पवित्र होने चाहिए। अपवित्र विचार आ जाए तो उसको क्षमा करते रहना चाहिए। विचार हमेशा पवित्र आने चाहिए, और जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे नहीं, हमेशा पवित्र विचार आएंगे। तो सहयोग जो है वो सिर्फ आपके आनंद के लिए, आपके महानता के लिए, आपके गौरव के लिए और आपके पूरी तरह की प्रगति के लिए बना हुआ है। लेकिन उसमें ये भी चीज निहित है कि जो उनके साथ इस महान कार्य के साथ, और जो लोग इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है उनके साथ कोऑपरेशन भी न दे, उनके साथ एकजुट सहयोग न दे, उन पर भी आफत आ सकती। जो पूर्ण हृदय से इस कार्य को कर रहे हैं उनके पूर्ण हृदय से आपको कार्य करना चाहिए। बहुत लोगों में अभी कंजूसी की भी बीमारी मैं देखती हूँ, कंजूसी पना करने कि जिस तरह से भी हो भाई, अगर 4 रुपए बचते हैं तो बचा लो, इधर से उधर से बचा लो। जितने आप 4 रुपए इधर से बचाएंगे आपके कम से कम 400 रुपए जाएंगे सीधे। और सहयोग विद्या हो 1 रुपए भी लाख रुपए के बराबर हो सकता है, यानी रुपए में ही हो जाएगा, ये बात मैं आपसे। लेकिन ये हम कुछ दे नहीं रहे हैं, सब कुछ माँ का ही है, माँ को माँ का दे रहे हैं, और हम तो कुछ लेते नहीं। आप तो जानते हैं सुबह शाम हमारा झगड़ा हो रहा है कि हमको कोई प्रेजेंट मत दो, हमको कोई चीज नहीं चाहिए, हम साड़ियां मत दो। सुबह से शाम तक 5 साल से झगड़ा चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं। कम कराते 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 इधर दाम भी बढ़ रहे हैं और कुछ चाहिए चीज नहीं चाहिए हमको। लेकिन सहयोग के लिए तो पैसा लगता है, लेकिन यहाँ तक लोग हैं कि जो मुफ्त में खाना खाना बड़ी मखदूम की समझते। बाद में उनके पेट में अगर शिकायत हो जाए तो मैं इसके जिम्मेदार। और ये जगह भिखारियों के लिए नहीं, रईसों के लिए। तबीयत चाहिए। अगर आप राजे जैसे आपकी तबीयत तो आइए, कोई जरूरत थोड़ी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत से पैसे वाले तो इतने महाकंजूस होते हैं और इस कदर अजीब होते हैं कि समझ में नहीं आता। और बहुत से मेरे जैसे गरीब ऐसे होते हैं कि उनको यही मजा आता है कि देते रहो। जब एक हाथ खुलेगा तो आप लेंगे, लेकिन दूसरा हाथ जब खुलेगा तभी दूसरे हाथ से आएगा, ये तो रुक जाएगा वहां। इसलिए कंजूसी की जो बातें मैं सुनती तो मुझे इतनी घिन चढ़ती कि कुछ पूछे। लेकिन उस दिन का नजारा मुझे अच्छा लगा कि जब सब कुछ रहा नहीं तो मेरे फोटो ही को लोगों ने बड़े प्रेम से ले लिया। माँ बाप जब फोटो दे रही सब आए तो बड़ा अच्छा लगा इस चीज। तो समाधान पहले आना चाहिए, समाधान के बाद ही मनुष्य ईसा मसीह जैसे तो कोई त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उस त्याग को सहर्ष स्वीकार करना। थोड़ी तकलीफ हो जाए, कुछ बात नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े महान कार्य में पड़े हैं, और अपने लिए नहीं,
तो हम सबके लिए कार्य करें। अगले साल मैं सबकी लिस्ट मंगाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ, खासकर बम्बई वालों की शिकायत है कि वो बिल्कुल ही पैसा देने से इनकार करते थे। और ये बम्बई में सारी महालक्ष्मी का टेम्पल है, क्या फायदा उस बेचारे महालक्ष्मी का टेम्पल का, जहाँ की महालक्ष्मी स्वयं जमीन से ऊपर आ गई और वहां के लोग इस कदर कंजूस है कि वो कुछ भी पैसा नहीं देना चाहते। सोचते सब तो माँ कर ही रही है तो चलो आराम से रहे, सब मजा आ रहा है, चलो ऐसे तो सब हो ही जाएगा, वो पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन उनका क्या होगा ये सोच लेना चाहिए। महालक्ष्मी के तत्व में यह है कि जब हम अंदर अपने अंदर समाधान को प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्मी का तत्व जब पूरा हो जाता है तो महालक्ष्मी का तत्व जागृत होता है, जहां हम सत्य को खोज लेते हैं। अगर आप में समाधान नहीं तो आप महालक्ष्मी तत्व पे उतर नहीं सकते। देखिए सीता जी का जीवन, वो रामचंद्र जी के साथ कितने दिन है, राधा जी का जीवन, और उसके बाद ईसा मसीह की माँ का जीवन, तीनों जीवन में कितना त्याग, बगैर महान समाधान के ये हो ही नहीं सकता। तो महालक्ष्मी तत्व से मनुष्य समाधानी हो जाता है और इस तत्व से वो फिर सत्य को ढूंढता है और सत्य को ढूंढते वक्त असत्य जो है उसे छोड़ते जाता है। तो आज के इस महालक्ष्मी के पूजन में, जहाँ के हम ईसा मसीह को पूज रहे हैं और उनकी माँ मेरी को पूज रहे हैं, तब हमको समाधान में उतरना चाहिए। संसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से जब हमारे अंदर समाधान आ जाता है तभी महालक्ष्मी का तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाता है और फिर जो महालक्ष्मी का तत्व है वो लक्ष्मी तत्व को संभालता है और लक्ष्मी तत्व अपने आप बनने लग जाता है, अपने आप कार्यान्वित होता है, अपने आप उसका लाभ दे देता है, अपने आप सारी चीजें बन के खड़ी हो जाती है। तो सिर्फ कहना यह है कि अपने दिल को बड़ा करें, तब दिल बड़ा करें और दिल के अंदर उस ओंकार को बसाएं, उस आत्मा तत्व को बताएं, उस ईसा मसीह को, उस गणेश को बसाएं, जिनके कारण हमारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाए और आपको अधिकार मेरे ऊपर आ जाए। उन लोगों के बगैर मैं आपको अधिकार नहीं दे सकती कोई सा। कुंडलिनी के जागरण में भी जब तक मूलाधार से परमिशन नहीं आती है, जब तक मूलाधार में बच्चे गणेश जी हाँ नहीं करते हैं, मैं क्या कोई भी कुंडलिनी को नहीं जगा सकता। उनके अधिकार अपने, अगर कोई सोचता कि माँ के बहुत नजदीक है तो वो ये समझ ले कि अगर वो नजदीक है भी और अगर वास्तविक में नजदीक है तो वो श्री गणेश की ही इजाजत से हो रहा है, ईसा मसीह की इजाजत से हो रहा है। उनकी इजाजत के बगैर मैं किसी को नहीं मान सकती। ये एक बंधन है हमारे ऊपर में और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि संभल के रहिए, इनके बंधन को मानना ही पड़ेगा और इनके जो कुछ भी आपके बारे में मत है, जो भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उसकी ओर मुझे जरूर देखना पड़ता है। मैं कितना भी माफ कर दूं, मैं माँ की दृष्टि से कुछ भी कह दूं, लेकिन इनके आगे मैं हारी हुई हूँ और ये जान लेना चाहिए कि ये लोग स्वयं आपकी मदद करने वाले हैं, आपको स्वच्छ करने वाले हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं, पर एक इनको उम्मीद है जो मुझे किसी चीज की उम्मीद है। मैं निर्वाच, मेरे अंदर कोई चीज मैं आपसे नहीं चाहती, आप जैसे भी हो ठीक है, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि अगर आपने मेरे प्रति कोई सी गलत बात कही या की या सहयोग में किसी भी तरह का आपने ओछापन किया या किसी तरह से ठगी की, कुछ किया, ये लोग आपको पीछे कर जाए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आज के दिन इस शुभ अवसर पे हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ कितनी बड़ी शक्तियां खड़ी हुई और क्यों ना हम उस शक्ति को पूरे स्वीकार करके शहंशाह जैसे, क्यों हम छोटे से बन के रहे,
जब हमारे पास इतना बड़ा सिंहासन है तो हम सिंहासन में बैठे शान से और उसी शान के साथ रहे जैसे कि एक को रहना चाहिए। अब आप सहयोगी हो गए, योगी जन है, बहुत बड़ी चीज है। कौन योगी हुए थे इतने, और इतने योगी इस गणपतिपुरे में आए हैं जहाँ पर कि महागणेश बैठे हुए, इनको महागणेश कहा जाता है। और इस महागणेश के परिवार में हम लोग यहाँ आए हैं, इनके इस प्रांगण में हम यहाँ पहुंचे और इनके आशीर्वाद से हमारे अंदर भी इन्हीं की जैसी महान शक्तियां आ सकती हैं। और सबसे पहले शक्ति को भी सहन करने के लिए उनकी पवित्रता और उनकी भक्ति होनी चाहिए। जिस तरह उनकी भक्ति है जिसमें कोई भी तरह का स्वार्थ नहीं, सिर्फ भक्ति मात्र, ऐसा अगर हम लोग अपना कर ले तो बाकी काम वो संभाल लेते, फिर वो आपके चाकर आपको संभालो। पर अगर आप उल्टे तरफ से चले तो आपको वो हानि भी कर सकते हैं। ऐसी एक सूझबूझ की बात मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एक माँ को ये लगता है कि भाई इनकी ये बड़े प्यारे मेरे बेटे हैं और इनसे आप लोगों का लाभ ही होना चाहिए, और फिर ये भी लगता है कि कहीं ये तुम लोग कान न पकड़ लें। इसलिए आपसे ये भी समझा रही हूँ कि जब इतना सुंदर हम लोगों ने समागम बिठाया है, सब हम लोग इतने सुंदर एक फैमिली के लोग आ गए हैं, सब एक साथ हो गए हैं, तब ये जो आपके बड़े भाई लोग हैं इनका आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि ये हैं बैठे हुए हैं, और इनको भी समझना चाहिए। और इनकी पूजा करने से जरा इनको आप खुश कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दी खुश नहीं होते, होता है ये, जब तक अंदर की स्वच्छता नहीं होगी खुश नहीं होगी। इसलिए अंदर की स्वच्छता हृदय की करके और आज प्रण करके इससे आगे कि हम कोई सी भी क्षुद्रता को, किसी भी ओछेपन को, छोटी बात को हम बिल्कुल त्याग दें और इनकी महानता और शुद्धता की ओर हम नजर करके इनको अपने आदर्श मान के उस ओर अपनी जिंदगी बनाएंगे। बस यही एक करने से सब हम लोगों का लाभ ही लाभ है। आपको अनंत आशीर्वाद है हमारे, और आप लोग सब आए यहाँ पर इतने प्यार से, सबको वहाँ धन्यवाद तो नहीं कह सकती, पर यही है कि मेरा हृदय भरा हुआ है और इस हृदय में आप सब समाये हुए हैं और मैं आपसे अत्यंत प्यार करती हूँ। नितांत मैं आपको प्यार से देखती हूँ और हमेशा आपके रक्षा की विचार में रहती हूँ। आपके प्रति मेरा पूरा चित्त है, तवज्जो है, और किसी प्रकार की भी तकलीफ हो आप मुझे लिख सकते हैं, पर आप स्वयं स्वच्छ हो जाएं, आप स्वयं शुद्ध हो जाएं और मंगलमय होकर के और इस आनंद को अनंत तक